Hello everyone, a very warm welcome to all of you on Target Uniform Services, and in this video we are going to discuss the polity question of UPSC CAPF 2015 examination. So let's start. Question number 1 is the setting up of the Interstate Council in 1990 was meant to. This question was asked I think multiple times by the UPSC in CAPF exam. ये फोर्थ टाइम पूछा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सब्सटीट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज रिलेटेड टू द प्लानिंग कमीशन. ठीक है, प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड है. एंड बी इज स्ट्रेंथन द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, इंटरस्टेट काउंसिल जो अंडर आर्टिकल 263 के जो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू constitute a interstate council to affect coordination between the center and state. So the president can establish such a council anytime it appears to him that the public interest would be served by its establishment. So the third statement is be an institutional interference between the judiciary and the government. No. To provide membership to local customary bodies. So our answer is B. Second is, which one of the following is not a central paramilitary under the Ministry of Home Affairs? There are two ministries, that is Ministry of Defence and Ministry of Home Affairs. Ministry of Defence के अंडर जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड. ठीक है, ये सब आती है. और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं ऑल द 8 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस लाइक BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB, NSG, SPG एंड RPF. जो इसकी टर्मिनोलॉजी है जैसे CAPF का अर्लियर जो नाम था वो था सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस, बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ चेंज दैट पर्टिकुलर नेम टू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस. ठीक है, जो कि 2011 में ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को चेंज किया गया है. तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस. लद्दाख स्काउट ये इंडियन आर्मी से एसोसिएटेड है, सो इट इज़ नॉट अ पैरामिलिट्री फोर्सेस. थर्ड इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय. जो कंट्रोलर का इसका आर्टिकल है आर्टिकल 148. इट प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द CAG. CAG is a constitutional body first of all, and he is the head of the Indian Audit and Account Department. और उनकी ड्यूटी क्या है? He upholds the Constitution of India and laws of Parliament in the field of financial administration. Financial administration से related जो भी काम है, he is the head of that particular authority. और CAG को अपॉइंट कौन करता है? President. By under warrant his hand and seal. And the CAG before taking over his office makes an oath and subscription. वो ओथ लेते हैं और सब्सक्रिप्शन बिफोर ही डू एनी वर्क. सो उनका ऑफिस का टाइम कितना रहता है? फिक्स्ड है, 6 years और एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर. और इनका रिमूवल कैसे है? ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन और ऑन द ग्राउंड सेम ग्राउंड ऑफ जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट. ये फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं है और ही इज़ प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड ही डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. सो इनका जो रिमूवल होता है वो रिमूवल इज टोटली डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ नॉट ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एन एड्रेस इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. सो सी इज आवर आंसर. According to Grenville Austin, he was a political or constitutional expert. Which of the following were the most significant contribution of India to constitution making? Grenville Austin, he did gave a concept called cooperative federalism. So cooperative federalism is between center and state. ठीक है, both cooperate to make India more prosperous. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? Consensus and accommodation. There will be a consensus between center and state in terms of financial matter, in terms of power sharing. ठीक है, power sharing, financial matter and accommodation. Question number 5 is the special provision in Article 371G of the Constitution of India is related to the state of Article G is मिज़ोरम. ठीक है,
So if you study all this article, so why do we need this special article 371? Because the intention behind them is to meet the aspiration of the people of backward region. There are certain state in that state, suppose this is a state and this particular area is very backward, so one particular state need special law to provide development work in that area. ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में देयर इज अ विदर्भ एरिया एंड सो कॉल्ड. सो आर्टिकल 371 is related to Maharashtra and Gujarat, 370A is Nagaland, B is Assam, C is Manipur, D is related to the Andhra Pradesh or Telangana, or E is Central Union State Andhra, and F is Sikkim, G we have talked about Mizoram, H is Arunachal Pradesh, I is Goa, J is Karnataka. Question number 6. The provision under Article 350A of the Constitution of India is related to the providing facilities to children in mother tongue at the primary stage. So under Article 351, the Constitution of India ensures that the children of that particular area will be given instruction in mother tongue at the primary stage up to the class 5th tak. They will be given instruction in their vernacular language, whichever it is. So answer is C. Question number 7 is, which of the following are provided in India by the Right to Education Act? First statement is right of children to free and compulsory education. Yes, it ensures. Second is prohibition of deployment of children for non-educational work other than decennial census, जो 10 साल में एक बार सेंसस होता है, और इलेक्शन टू लोकल बॉडीज लाइक स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड डिजास्टर. तो इसमें बोला कि प्रोहिबिशन, टीचर्स का एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम दीज वर्क, इधर इन द सेंसस रिलेटेड वर्क और इन द इलेक्शन वर्क, उनका डिप्लॉयमेंट इन दो काम को छोड़ के कहीं नहीं होना चाहिए. येस, दिस इज ऑल्सो फीचर ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट. तो बोथ आर राइट स्टेटमेंट. राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट का फीचर नहीं है, ये आर्टिकल 30 है, अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फोर्थ इज नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड, ये भी इसका फीचर नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स. Question number 8 is, according to Article 3 of the Constitution of India, the Parliament may by law, first is declare war on any country, Article 3 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है. Second is alter the boundary of any state, yes. Increase the area of any state, yes. And establish an autonomous council, ये भी नहीं है. ठीक है. Article 3 है क्या बेसिकली? Article 3 ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को क्या करने के लिए? टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट और टू डिमिनिश. जैसे वन पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे पहले आंध्रा थी, आंध्रा को बाइफर्केट करके क्या बना दिया उससे तेलंगाना. इन 2016 जुलाई 2016 में न्यू स्टेट बनी थी तेलंगाना. अभी रिसेंटली क्या किया है, जो JNK स्टेट थी उसको बाइफर्केट के क्या दो यूटी बनाई है. वन इज कश्मीर, अनदर इज लद्दाख. एंड अनदर प्रोविजन ऑफ दिस, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम चेंज हो सकता है. और देर आर 2 कंडीशन अटैच्ड वाइल यूजिंग आर्टिकल 3 बाय द पार्लियामेंट. अगर ऐसा कोई बिल लेके आना है टू इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट. सेकेंड इज बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, ठीक है, प्रेसिडेंट जब उसको रिकमेंड करेगा पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को वो बिल किसको भेजना पड़ेगा? स्टेट को. प्रेसिडेंट हैज़ टू सेंड दैट बिल टू स्टेट, देन ओनली ही कैन सेंड टू पार्लियामेंट. ये 2 कंडीशन इसमें अटैच्ड हैं. ठीक है. और आवर आंसर इज 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी और कमेटीज सबमिटेड रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म? दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990, तारकुंडे कमेटी 1974, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी in 1998, and again Balwant Rai Mehta committee is related to the Panchayati Raj Institution, PRI.
So it's a wrong. Our answer is 1, 2 and 3. C is our answer. Question number 10 is, under Article 355 of the Constitution of India, it is the duty of the Union to protect state against external aggression and internal disturbance. Correct statement. B is, allow the extension of executive power of the Union to any state. Wrong statement. Third is, declare that the power of the legislature of a state shall be exercised by under the authority of the law. Again a wrong statement. D is, allow the parliament to include or exclude any caste, race or tribe into the list of the scheduled caste or scheduled tribe. Wrong statement. So what is Article 355? The Constitution contains the following provision which enable the center to exercise control over the state administration. ठीक है. First is to protect every state against external aggression, that is given in this question. Second is to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the Constitution, जो कि प्रेसिडेंट रूल लग जाता है. If the state machinery is failed in the sense the state machinery is not able to maintain law and order situation and he is not following instruction given by center, then center can take over state in this respect under Article 355. So question 11 is, who functions as chairman chief of staff committee? Chief of staff committee में उसका chairman कौन होता है? ये convention है. Convention in the sense whoever will be the longest serving chief among the three services, Indian Navy, Indian Army and Indian Force. ठीक है. The particular person will be the chief of staff committee. Question number 12, the National Human Rights Commission has, उन्होंने बोला कि चेयर का क्या, चेयरमैन जो है हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट. क्या स्टेटमेंट ठीक है? जो NHRC में चेयरमैन जो होते हैं, चेयरमैन बनने के लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? चेयरमैन हैज़ टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. इसके अलावा चेयरमैन कोई नहीं बन सकता. तो इसमें क्या है? हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट. और अ हाई कोर्ट, नहीं, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं होने चाहिए. ही शुड बी अ चीफ जस्टिस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो सब में जो फर्स्ट है वो सब गलत हो गया. आंसर इज डी. और वन मेंबर हु हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड वन मेंबर हु हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. और फोर्थ इज टू मेंबर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स. सो NHRC क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि 1993 में बनी थी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो पार्लियामेंट लेके आई थी. ठीक है. कंपोजिशन इसकी हमने डिस्कस कर लिया. 13 इज द सेकेंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन is related to, or this body has given report on which subjects? That is ethics in governance, yes. Local governance, counter terrorism, yes. These three are our answer. So 1, 2 and 3 only is our answer. Eradication of corruption is related to Santhanam committee. The Punchi Commission was related to the center state relation. और कौन सी कमेटी है जो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है? राजमनर कमेटी. दिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो 1966 में आई थी. देर आफ्टर सरकारिया कमीशन 1983. देन पुंची कमीशन इन 2007. 15 क्या है? डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी आर एसोसिएटेड विद द, जो रुडोल्फ है और रुडोल्फ, सुसेन H रुडोल्फ, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था. डिमांड पॉलिटी रेफर्स टू ए सिचुएशन इन ए शॉर्ट टर्म बेसिस में जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है ऑन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. ठीक है. शॉर्ट टर्म इट इज़ रिलेटेड टू. कमांड पॉलिटी इज रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म. जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, जो आज जो डिसीजन लेगी उनका जो है आउटकम या फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन इन फ्यूचर, उनका हमें फ्यूचर में आउटकम मिलेगा. दैट इज़ अ कमांड पॉलिटी.
16 is which one of the following is the principal place of sitting of the National Grain Tribunal? It is in न्यू दिल्ली. ठीक है. एनजीटी का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 2010 में अंडर 11th 5-year plan. The 9th schedule to the Constitution of India was added by the First Amendment Act of 1951. और इसमें क्या था? इस पर्टिकुलर जो 9th शेड्यूल में था, द लैंड रिफॉर्म किए थे गवर्नमेंट्स ने. लैंड रिफॉर्म्स, जो भी लैंड रिफॉर्म थे वो हमने 9th शेड्यूल के अंडर डाल दिए. सो 9th शेड्यूल में डालने से जो लैंड रिफॉर्म एक्ट थे उससे क्या फ़ायदा? उससे ये फ़ायदा था कि जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन. सो दीज लॉ दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू. अंडरस्टैंड दिस. क्वेश्चन नंबर 18. द राज्यसभा कैन विदहोल्ड इट्स कंसेंट टू ए मनी बिल फॉर 14 days. 14 दिन के अलावा कोई भी मनी बिल को ये रोक नहीं सकती. ठीक है. और व्हाट इज़ मनी बिल? इट इज़ mentioned in article 1110 of the constitution. there are certain provision which are associated with the money bill कि अगर इनमें से कोई भी मैटर किसी बिल में है तो then that bill will be called as a money bill, like regulation or borrowing of money by the union government or imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax will be dealt as a money bill. और राज्यसभा की क्या पावर है विद रिस्पेक्ट टू द मनी बिल? राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल. इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, जो कि लोकसभा एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी डिपेंड करता है लोकसभा पे. और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर वो बिल लोकसभा को भेजना पड़ता है विदाउट एनी रिकमेंडेशन और विद एनी रिकमेंडेशन. और इन द राज्यसभा डज नॉट, इफ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 days, देन दैट बिल विल बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस. ठीक है. 19 is which of the following reason were cited by the Ashok Mehta committees related to the पंचायती राज. सो अशोक मेहता कमेटी ने कौन सा रीज़न दिया था कि डिक्लाइनिंग ऑफ पंचायती राज, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पतन हो रहा है. पतन इन द सेंस दे बिकम मोर वीकेन. दैट इज फर्स्ट इज रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इन द सेंस पॉलिटिशियन जो हैं दे विल नॉट डिवॉल्विंग, दे वर नॉट डिवॉल्विंग मच पावर टू द पंचायती राज सिस्टम. रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी मीन्स ब्यूरोक्रेसी वॉज ऑलरेडी स्ट्रेच्ड. ठीक है. दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दे डू नॉट हैव द मैन पावर. मैन पावर मतलब टेक्निकल मैन पावर नहीं थी इनके पास. थर्ड इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड द लैक ऑफ जेंडर पैरिटी. जेंडर पैरिटी भी एक इसका है डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम, बट इन्होंने अशोक मेहता जी ने इनकी अपनी रिपोर्ट में इसकी रिकमेंडेशन नहीं की थी. ठीक है. एक फैक्टर नहीं बताया था कि दैट इज़ द फैक्टर फॉर द डिक्लाइन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. सो आंसर इज सी. सो अशोक मेहता कमेटी कब आई थी? 1977 में. इन्होंने 132 रिकमेंडेशन दिए थे और दे हैव रिकमेंडेड दिस पर्टिकुलर कमेटी 2-tier सिस्टम. और जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी. ठीक है. और द न्याय पंचायत शुड बी केप्ट सेपरेट बॉडीज फ्रॉम दैट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पंचायत. और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की इन्होंने बात की थी, शुड बी गिवन और अकॉर्डिंग टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. Again, thank you. I hope you like this video. Please share and subscribe.